This call is now being recorded. All right. Hani, we're going to today start the topic of electricity. All right. And Mm-hmm. so, can you tell me any idea you have related to electricity? Any idea? Um, Anything you know about electricity? Or, current. okay, current. Anything else? Um, What comes into your mind when you come across the word electricity? और in other words, मैं आपसे अगर पूछूं आप define करें what is electricity, how are you going to define it? um, Okay, so let me write it down for you. And okay. it is a physical phenomena, all right, Okay. associated associated with the presence and motion of matter that has a property of electric charge. ठीक हो गई बात? इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ. Electricity is a physical phenomenon, just like uh, reflection is. ठीक है ना, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स होता है ना, आपने पढ़ा है. दैट्स अ फिजिकल फिनोमेना. ठीक है ना. इसी तरीके से और भी फिजिकल फिनोमेना होते हैं. फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्शन. आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो यू विल बी स्टडीइंग इन द section of waves anyway. So reflection, refraction, these are physical phenomena. Just like these, electricity is also a physical phenomena, and it is linked to particles. ठीक है ना. It is linked to matter, but what kind of matter? Particles that possess property of electric charge. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज लिंक्ड टू मैटर. बट व्हाट काइंड ऑफ मैटर? So there is the particles, and particularly those particles that possess the property of electric charge. अच्छा, यहाँ पे मैं जरा थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर दूं. नॉट ऑल पार्टिकल्स पोजेस दिस प्रॉपर्टी. ऐसा नहीं है कि आपके जितने पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं सब ये प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं. नो. बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे नहीं करते, और बहुत सारे टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. मतलब there's a long list of particles which have been discovered till date. एक टाइम तक तो सिर्फ 3 पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे. एक वक्त था जब कोई पार्टिकल डिस्कवर नहीं हुआ था, फिर जो है 3 पार्टिकल्स आपके डिस्कवर हुए, फेमसली नोन एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. सो शायद आपने ये टर्म्स, you must have heard about these particles in general science as well. हो सकता है आप इन पार्टिकल्स के नेम्स के साथ फेमिलियर हों. बहरहाल तो एक टाइम तक ये सिर्फ 3 पार्टिकल्स थे जो कि नोन थे. उसके बाद इन recent times there have been many other many other particles like these ones. इन 3 जैसे और पार्टिकल्स जो हैं भी डिस्कवर किए हो चुके हैं, डिस्कवर हुए. एंड टिल डेट, you know, there's a relatively a long list of
पार्टिकल्स जो कि डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है ना. सो बट मैं उन in among all those particles, most of them possess this property of electric charge, and of course rest of them don't. कुछ possess करते हैं, कुछ बाकी नहीं करते. अच्छा, जो करते हैं ना possess ये property of electric charge, उनकी presence और उनका जो motion है, that is what we refer to as electricity. That is what is linked to the phenomena of electricity. ठीक होगी बात. तो ये थोड़ा सा ये आपने याद रखो. तो अगर लेट्स सपोज now as far as electric charge is concerned, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. Now let's define what is the electric charge. यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? नहीं है नहीं? आ गई. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं चार्ज की. तो चार्ज बेसिकली ना प्रॉपर्टी होता है. जैसे कि आपने in the section of mechanics you learned about deformation of springs, and in that you learned about a property of springs, that is what we call as a spring constant. So that is basically what it's a property of the spring. ये property है possessed by each spring. So similarly, charge is a property possessed by some particles, not all of them but some particles. All right, so it's a physical property. Let me write it down, the definition for it. The definition for you, it is a physical property of matter such that it experiences a force in an electric field. Okay, we're going to talk about electric field a little later, but याद रखिएगा कि वो particles जो कि ये property possess करते हैं ना of electric charge, so in an electric field they actually experiences force. ठीक है ना. और मैं आपको जैसे कि लेट्स टेक अ वेरी इजी एग्जांपल. अगर आप कोई मैग्नेट है, तो अगर आप किसी स्टील ऑब्जेक्ट को इफ यू गोइंग टू प्लेस नियर बाय अ मैग्नेट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स. ठीक है ना. इसी तरीके से if you talk about yourself, so when you are within the earth, so this is the earth's surface. So if you are on the earth's surface, you are going to experience gravitational force of attraction, gravitational force. And what is the nature of that gravitational force? It's a force of attraction. So just like these fundamental forces, there's another fundamental force that is what we call as a electrostatic force. So हम क्या कहते हैं? Electrostatic force कहते हैं. And this is a force that is experienced by each and every particle that possess the property of charge, that have a charge. हर वो particle which possesses a charge, वो experience करता है a force, that is what we call as electrostatic force, within a region जिसे हम electric field कहते हैं. And just like the nature of gravitational force, which is attractive, so an electrostatic force may be attractive. ठीक है ना. It may be attractive or it may be repulsive. All right. Okay. The
force experienced by a particle that possesses a charge. All right. The force experienced by a particle that possesses a charge may be attractive in nature or repulsive. So I'm just writing it down over here for you. So it may be attractive now. Also, you need to know that there are two types of charges. All right, the charge is of two types. One is positive charge, all right, positive charge, and the other one is a negative charge. The charge possessed by a particle may be positive or negative. All right, Mhm. and the example of a particle that possesses a positive charge is proton. Proton is an example of a charge that possesses a positive charge. Similarly, example of a particle that possesses a negative charge is you know it, Electron. electron. Okay, that's great. So electron. So protons are the ones that possess positive charge. Electrons are the ones that possess negative charge. अच्छा, इसके अलावा भी आपका पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज पोजेस करते हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स के एंड देयर आर अदर पार्टिकल्स एज वेल. इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज पोजेस करते हैं. मैंने एक एक एग्जांपल लिख दिए दोनों. अच्छा, व्हाट अबाउट द वैल्यू? So the value of the charge that is possessed by अच्छा proton, so वो आपकी होती है +1. अच्छा देखिए, मैं ना यहाँ आपको जरा बता दूं कि +1 is the relative value. Similarly, -1 is a relative value. Electron, the relative value, relative value of the charge possessed by the proton is given a number as +1, and the relative value of the charge possessed by the electrons is given the number as -1. Now, what about the absolute value? What about the absolute or the exact value of the charge? So that is plus 1.6 exponent minus 19. All right, and let me also tell you that the unit for charge is coulombs. Coulombs. Let me write it down for you. The SI unit is coulombs. All right, Mhm. capital C. इसका जो सिंबल होता है यूनिट का of the charge, that is capital C. It stands for coulombs, and it's actually named after the physicist who discovered this property of the particles. ठीक है ना? अच्छा, तो आप of course जो relative value है of the charge possessed by proton is +1 coulomb, while that of electrons is -1 coulomb. और इसकी जो absolute value है, absolute value क्या है? That is 1.6 exponent minus 19 coulomb. और जो आपकी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट इज -1.6 exponent minus 19 coulomb. ठीक हो गई बात?
अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, सो द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई, ठीक है ना। सो if you come across this symbol small e, so that refers to the charge on an electron, ठीक है ना। अगर आप कहीं देखेंगे स्मॉल ई लिखा है, इसका मतलब ये है कि इट्स रेफरिंग टू द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दैट इज -1.6 एक्सपोनेंस -19, ठीक है ना। और इफ यू कम अक्रॉस अ सिंबल small p written, that means it is referring to the charge on a proton. They're referring to the proton, the charge on a proton. ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको बेटा? जी अच्छा, ये जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ये जो आपकी चार्ज की वैल्यू मैंने लिखी है, सो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँ। इट्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और हानि इसमें ना, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब पता है क्या होता है? कि ये आपकी बेसिक वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो है सारे जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं जो कि पोजेस करते हैं ये प्रॉपर्टी, तो उन पे आपका चार्ज यही हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो चार्ज, कोई भी पार्टिकल जो कि ये प्रॉपर्टी पोजेस करता है चार्ज की, it may have a value of charge that is a multiple of this value. तो अगर कोई और पार्टिकल है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इनकी जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज द बेसिक वैल्यू, या ये कह लें कि चार्ज पोजेस्ड बाय प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इज द एलिमेंट्री चार्ज। लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट अनदर पार्टिकल जिसे हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। एक पार्टिकल है जिसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, उसका जो सिंबल ये है। सो इसका जो चार्ज है दैट इज +2 +2, एंड दैट मीन्स इसकी जो चार्ज की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। इज दैट क्लियर और नॉट? या ये बात समझ आ गई बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्लियर है ये? सो ये आपकी जो वैल्यू मैंने लिखी है, ये इट्स अ वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, बट द पार्टिकल में पोजेस चार्ज that may be greater than, that may have a value greater than this, and of course जो भी वैल्यू होगी that is going to be multiple of this, ठीक है ना। तो अगर चार्ज की वैल्यू 2 टाइम्स है, सो द रिलेटिव वैल्यू इज गोइंग टू बी +2, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दैट विल बी 2 टाइम्स 1.6 एक्सपोनेंट -19। अगर चार्ज की वैल्यू +3 है, तो फिर आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स 1.6 एक्सपोनेंट -19, ठीक है ना। फुली आपको क्लियर होगा। अच्छा, अगली चीज़, इसको मैं ज़रा okay, now then what is next? Okay, now let's talk about, for example, if you have two particles, अगर आपके पास दो particles हैं हानि, दो particles हैं, ठीक है ना, और ये दोनों आपके this one possess +1 -1, मतलब ये relative charge है दोनों particles पे, +1 -1 coulombs, और इधर जो है ना, इधर क्या है, तो थोड़ा सा मैं, अच्छा यहाँ पे ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये आइडेंटिकल है, यानी दे हैव द सेम साइज। यहाँ जो दो पार्टिकल्स हैं आपके वो आइडेंटिकल नहीं है, एक बड़ा एक छोटा है।
जो बड़ा वाला है उस पर चार्ज आपका ले लेते हैं +2 और जो छोटा वाला है उसको चार्ज लेते हैं -1। ठीक होगी बात, फेयर इनफ। ना एक बात तो ये कि याद रखिएगा कि रिगार्डलेस ऑफ, पहले यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स लिख देता हूँ, दैट इफ यू हैव 2 पार्टिकल्स that possess the same charge, I mean 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं और उनका जो साइन ऑफ चार्ज है वो सेम है, so then they are going to repel each other, so like charges repel। अब मैं लिख देता हूँ, अगर 2 पार्टिकल्स हैं और उन पे जो है चार्ज का जो साइन है वो सेम है, then they are going to repel each other। अच्छा, and they could be both positive or both negative। ठीक है यानी, और जो आपके अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या होते हैं भाई? Attract? वो आपके होते हैं अट्रैक्ट। हाँ, अगर आपके 2 पार्टिकल्स हैं जिन पे जो साइन ऑफ चार्ज है वो ऑपोजिट है, तो फिर वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना? एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, मतलब इसका एक्सपेरिमेंट होता है ये वेरीफाई करने के लिए कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इसका ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है और इसका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी होता है टू वेरीफाई दिस रिलेशनशिप, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। ठीक है ना? वी आर नॉट डूइंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ऑलराइट? और हो सकता है शायद आपको स्कूल में मे बी लाइक पार्ट ऑफ practical knowledge, maybe like an approach to give you a practical knowledge, हो सकता है आपको शायद ये कराया हो, स्कूल्स में कराते भी हैं, जैसे मैं कराता हूँ। कुछ स्कूल्स ये वो करते हैं, क्या कहते हैं, दे एक्चुअली emphasize on you know demonstrating different concepts of physics through practicals। तो उसमें जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ मैं ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके शो करता हूँ बच्चों को, जिसमें वेरीफाई होता है कि जो लाइक चार्जेस में रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्ट करते हैं। एनीवेज, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल हम एट द मोमेंट वी आर नॉट डिस्कसिंग द एक्सपेरिमेंट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। सो अनलाइक चार्जेस आपके अट्रैक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा, ये जो आपकी when you say like charges repel, that means कि when they are going to place close to each other। अब ऐसा भी नहीं है कि उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो बहुत लार्ज हो, अगर बहुत लार्ज हो जाएगी तो फिर तो there won't be any force between them। ठीक है ना? चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्जन हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फॉर यू टू एक्चुअली for a force to exist between charged particles, the separation must not be very large। बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, सेपरेशन कम हो, ये भी नहीं बिल्कुल आपने कम कर दी, लेकिन मतलब इट शुड बी वेरी नॉमिनल। ठीक है ना? देन आपकी जो है ना फोर्स एग्जिस्ट करती है। अच्छा, और जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, इन केस अगर आपके जो पार्टिकल्स हैं दे आर लाइक पार्टिकल्स, आई मीन दोनों आपके पार्टिकल्स पे चार्ज सेम है, आई मीन चार्ज का साइन सेम है, सो देन जो उनके दरमियान फोर्स ऑफ, देन व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज गोइंग टू एग्जिस्ट बिटवीन देम, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फोर्स ऑफ रिपल्जन। और अगर आपके अनलाइक पार्टिकल्स हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी दैट विल बी कॉल्ड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। ठीक है? अच्छा, वन मोर पॉइंट एंड दैट इज कि ये जो आपकी फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट। याद रखिएगा क्या है, दोबारा लिख देता हूँ, द फोर्स दैट एग्जिस्ट between charged particles, just a second, just got hanged a little bit, I don't know, but I don't know.
sorry. So the force that exists between charged particles is always equal and opposite. Is always equal in magnitude and opposite in direction. ऑलराइट, इसका क्या मतलब है कि आपका जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि ये दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पे जो चार्ज का साइन है वो ऑपोजिट है. इनफैक्ट जो चार्ज की वैल्यू वो सेम है. दीज आर टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज इनका एक तो साइज सेम है पार्टिकल्स का, जो चार्ज है आपका वो जो उसकी जो वैल्यू है वो भी सेम है, ओनली द साइंस आर डिफरेंट. तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो ऑन दिस पार्टिकल the electrostatic force of attraction will be directed towards this particle, and on this particle the electrostatic force of attraction will be directed towards this particle. ठीक है. और ये जो फोर्सेस ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑलवेज गोना बी इक्वल. In fact, this pair of forces form the action-reaction pair. This pair of forces form the action-reaction pair. All right. Okay. This pair of forces form the action-reaction pair. अच्छा, और and that is regardless of the value of the charge. मतलब जैसे कि यहाँ पर है, these two particles aren't identical. One of them is bigger in size than the other one. In fact, जो charge का sign है वो opposite है. Okay, there is going to be electrostatic force of attraction that's going to exist between them. जो charge की value है दोनों पे वो भी different है, size भी different है, but जो भी force of attraction होगी इस वाले पे, that will be directed towards this one, और इस वाले पे जो force of attraction होगी that will be directed towards this particle. And again, this pair of electrostatic force, this pair of forces, this pair of attractive forces again form the action-reaction pair, being equal in magnitude and opposite in direction. Although यहाँ पे जो charge की value है दोनों पे वो अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो electrostatic force of attraction exist कर रही है, वो जो भी कर रही है, दोनों पे both of them are going to experience force of equal magnitude. And if you compare the directions, of course they are going to be opposite. जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं फोर्स, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो एक दूसरे पे लग रही है वो सेम रहेगी रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स. ठीक है ना, तो ये जहन में रखिएगा. एंड सेम हैपेंस विद द ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल. ग्रेविटेशनल फोर्स की खैर नेचर आपकी अट्रैक्टिव ही होती है, रिपल्सिव तो नहीं होती. उसमें भी यही होता है, याद रखिएगा. कि मैं आपको खैर एक बात बता देता हूँ कि जैसे कि इफ़ यू आर you have a mass and you know that you are being attracted to the earth. याद रखिएगा कि just like वो particles जो कि charge possess करते हैं उनके दरमियान आपकी electrostatic force होती है of repulsion और attraction. इसी तरीके से दो bodies जिनका mass होता है उनके दरमियान gravitational force of attraction exist करती है. And in fact एवरीथिंग अराउंड अस एज अ मास, यानी हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, हमें नज़र आती है और हमें नज़र नहीं भी आती, उसका मास होता है. इवन इफ़ यू टॉक अबाउट दीज पार्टिकल्स, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं ना, इनके दरमियान, ठीक है ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये पोजेस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्जन, ये बात समझ आती है. बट इन फैक्ट बिकॉज दे हैव अ मास एज वेल, तो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करती है. बट बिकॉज इनके जो मासेज हैं
वेरी 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 लो, बहुत ही लो है, बहुत ही लो है. इनफैक्ट द प्रोटॉन हैज अ मास ऑफ अराउंड 1.66 into 10 power minus 24 kilograms. Now you can imagine minus 27 kilograms. Sorry, you can imagine how small this value of the mass is. And electron has even a smaller mass. That is, it has a mass that is 1800 times smaller than that of proton. And it has a mass of around 9.11 exponent minus 31 kilograms. So you can just imagine how small the value of the masses of these particles is. But still, as per the Newton's law of gravitation, which you will be studying in your advanced level in detail. So as per that law, because these two particles does have mass, these particles do have a mass, so there is a gravitational force that exists between them. Although वो आपकी force हम neglect कर देंगे because of the fact कि जिनके masses हैं, you know they are too small, but for like theoretical purpose, for calculation purpose, तो ठीक है, समझ आती है, आपने ignore कर दिया. But the fact is कि आपकी gravitational force exist करती है, भले बहुत कम करती है लेकिन करती ज़रूर है. ठीक है ना, याद रखिएगा. और इसी तरीके से हमारी अगर बात करें तो हमारे और अर्थ के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज वी ऑल सीम टू बी अट्रैक्टेड टू अर्थ. और इसकी वजह भी सिर्फ यही है कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है. इट्स अराउंड 6 into 10 power 24 kilograms. पता नहीं, आई थिंक समवेयर अराउंड दिस, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बहरहाल. लेकिन नहीं, ये जो मैंने बताया ये इसकी डायमीटर की है, नहीं मास इसका. अगेन it's too large barrel, and that is because of too much big mass of earth. Everything, the gravitational force that exists between the earth and everything around it, it's like significant. इस वजह से आपको चीज़ें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती नजर आती है. लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप ये समझ रही हैं कि only the earth is exerting force on us, on me for example, no. So at the same time, I am also attracting the earth. Just like earth is attracting me with some force, so I am also attracting the earth with the same force. यानी मैं भी अर्थ पे वही उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exert कर रहा हूँ जितनी अर्थ मुझ पे कर रही है. But because earth has a very 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 huge mass compared to me, so of course I can't make it pull. मैं उस पर फोर्स तो उतनी ही exert कर रहा हूँ, but I can't make it pull it towards myself. मैं उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकता. exert तो मैं कर रहा हूँ फोर्स उस पर उतनी जितनी वो मुझ पे कर रही है, लेकिन I can't make it move I can't make it move towards myself. I can't pull it towards myself. On the other hand, अगर वही फोर्स मुझ पे लग रही है by the earth, so of course I don't have that much mass. I can be easily pulled. इस वजह से everything, if you throw anything that moves up the surface of the earth, it seems it always comes down or towards the surface of the earth. And that's because कि उसमें within the earth there's a constant there's all the time a gravitational force of attraction acting upon that. And वो चीज़ आपको अर्थ की तरफ मूव होती नजर आएगी बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्मॉल मास. ऑल्दो कोई भी चीज़ जब आपकी फॉल कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ, so like it's being attracted by the earth, so at the same time it is attracting the earth as well. ये तो अट्रैक्ट हो ही रही है अर्थ से, लेकिन ये अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रही है with the same magnitude of force. But because earth has a very huge mass, so you won't observe the earth getting pulled or getting you're not gonna observe earth being moved, earth moving towards this object or the ball, whatever it is. हाँ, लेकिन इसका मास बहुत छोटा है, तो इस पे जब ये वाली फोर्स लग रही है तो ये आपको मूव होती हुई अर्थ की तरफ दिखाई देगी. सो दैट इज बेसिकली द थ्योरी एंड थ्योरी रिगार्डिंग व्हाट यू ऑब्जर्व. जो आप चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं ना, उसके हवाले से ये थोड़ी सी बैकग्राउंड था. सो आई होप टिल नाउ इट इज़ ऑल करेक्ट. अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि लेट मी डिफाइन फॉर यू नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर?
ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी से बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एनी आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होता है फील्ड? फील्ड क्या होती है? Um, फुटबॉल फील्ड क्या होती है? in the area around something. रीजन और एरिया, बट व्हाट काइंड ऑफ रीजन और एरिया, ये तो बताएं जरा, किस किस्म का एरिया, क्या होता है उस रीजन के अंदर, उस एरिया में क्या होता है, ये तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। Charge. हाँ देखो, एक बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ना, जस्ट लाइक जैसे फुटबॉल फील्ड होती है ना, ये भी एक रीजन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन इन स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल। यानी लेट्स अज्यूम आप एक चार्ज पार्टिकल है, तो आपके अराउंड ना करीबा क्या होगा, आपके अराउंड होगा ये कि आपके अराउंड कुछ एरिया, आपके अराउंड एक रीजन होगा, ठीक है ना। आप एक चार्ज पार्टिकल है और आपके अराउंड ये रीजन है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। और इस रीजन की क्या खास बात है, होगा क्या इस रीजन में? इस रीजन में ये होगा कि अगर इस रीजन में ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड ये रीजन है, मतलब इसकी यकीनन कोई ना कोई बाउंड्री होगी ना, कह सकते हैं कि मतलब ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी कोई बाउंड्री है, और ये जो बाउंड्री है इसी वजह से कह रहे हैं ये रीजन की बाउंड्री, और जो भी इसके अंदर चार्ज पार्टिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं आई तो बता दो ना। आपकी आवाज कट रही है। मुझे आवाज कट रही है, कैसे हो सकता है? तो इंटरनेट सही चल रहा है, हमारी आवाज। अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं आपकी डेफिनेशन को ही रख देता हूँ। रीजन इन स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल where positive charge experiences an electric force of electric force, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे कि ये एक ठीक है ना, और हाँ नहीं, ये दो पार्टिकल्स हैं, ये मैंने दो पार्टिकल्स ड्रॉ किए हैं। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छा ये हाँ नहीं, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, अच्छा इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है ना, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है आनी। अच्छा अब ये जो आपका पार्टिकल है आनी, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब हो ये रहा है कि हानि ये अच्छा ये दोनों करीब करीब नहीं रखे गए, ये पार्टिकल अलग जगह रखा गया, ये अलग रखा गया, इनके दरमियान सेपरेशन लार्ज है, तो ये दोनों इन दोनों का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है। मैंने बराबर बराबर बना दिए, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ इनका अभी एट द मोमेंट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना, मतलब इनका आपस में एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा सो
व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि ये आपका एक चार्ज पार्टिकल है, उसके अराउंड आपका ना ये रीजन है, और इस रीजन की ना एक बाउंड्री है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर इस बाउंड्री के अंदर अंदर क्या होगा और इस बाउंड्री के बाहर क्या होगा। अच्छा, अब मैं लेकर आ रहा हूँ एक और पार्टिकल फॉर टेस्टिंग पर्पस, उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते टेस्ट। हैं। हाँ। अच्छा, ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, ये आपका दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अच्छा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव ना हो, ये हो सकता है, बट दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो कि ग्लोबली आपकी फॉलो होती है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी टेस्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स अ वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने का मतलब है यू आर एक्चुअली वेरीफाइंग इट्स डायरेक्शन। तो उसके लिए जो आप टेस्ट चार्ज यूज करते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप डायरेक्शन जो है ना वो क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज कर रहा हूँ, आप नेगेटिव करेंगी, तो हम दोनों की पार्टिकल एक ही होगा, लेकिन आप नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज यूज कर रही है तो उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ और आएगी। और मैं अगर वही पार्टिकल है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज कर रहा हूँ, तो इन दैट केस जो डायरेक्शन आएगी वो ऑपोजिट आएगी। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट व्हेनेवर यू verify and the direction of the electric field, whenever you analyze the electric field, whenever you verify the direction of the electric field, you always use a test charge that is positive. ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना, वो हमने लाके इस रीजन के अंदर अंदर रख दिया। ठीक है आनी? अब मुझे बताओ क्या होगा आनी, अब मुझे बता दो बस क्या होगा, फिर बस ये बता दो क्या होगा, जल्दी से बता दो। रिपेल। अब हाँ, इधर क्या होगा? रिपेल होगा। अगर रिपेल होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका ये जो ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इन पे ना अब मैं एरोज मार्क करने चला हूं, और वो एरोज बताएंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं बात करूं इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की, इन दिस केस इट्स गोइंग टू गेट रिपेल्ड, so the direction of force on this positive test charge is going to be directed outwards. ठीक है बेटा? And if I use the same positive test charge here, then over here the direction of force on this positive test charge is going to be directed towards the negatively charged particle. Is that clear or not? Because the force is going to be attractive. तो यहाँ पे अब मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ कि आपकी जो डायरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, the direction of electric field is the same as the direction of positive test charge. The direction of electric field is the same as the direction of force on a positive test charge. यानी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप किसी चार्ज पार्टिकल की फील्ड में रखें, उस पे डायरेक्शन में आपकी फोर्स एक्सर्ट होगी, वही आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है ना? फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। Is that clear or not, Hani? Yeah, it's clear. अच्छा, ये जो मैंने आपको बताई है ना, ये जो मैंने ड्रॉ करी है, ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और एक पॉइंट मैं और लिखूंगा, ये जो आपका मैंने ये अभी यहाँ पे जो गैप रखा है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान, ये सेम है। एंड दिस शोज के आपकी जो फील्ड है ना यहाँ पे, आई वुड से दैट द फील्ड अराउंड दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। तो जब आपकी जो है फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हो, so then the field is electric field is said to be uniform. That means कि आपका इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इधर हो या इधर हो या इधर हो, फोर्स उस पे जो लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड सेम ही है एवरीवेयर।
ठीक है ना। इसका ये मतलब होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है कि द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज द सेम एवरीवेयर इन द फील्ड, यानी आप फील्ड में कहीं भी हो फोर्स सेम लगेगी, ऐसी फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एंड दिस अप्लाइज टू द ग्रेविटेशनल फील्ड एज वेल, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ द गैप बिटवीन, लिख देता हूँ द गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस tells the strength of the magnetic of the field, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, tells the strength of the field। अच्छा, मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक नहीं लिख रहा क्योंकि दिस अप्लाइज टू ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। सो द गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपका गैप कम होता है तो दैट रिफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। जितना गैप आपका कम होता जाएगा फील्ड लाइंस के बीच, दैट रिफर्स टू अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। और जितना आपका गैप बढ़ता जाएगा उतना आपका वीक फील्ड होगी। आई बात समझ में नहीं आई? मतलब जैसे कि अगर जैसे अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि अगर आप दो पार्टिकल्स हैं उनको आप इन एक दूसरे के सामने रखें, चाहे वो उनके सामने अगर आप रखते हो उनके दरमियान क्या सेपरेशन है, तो देन उनके इन दोनों जो भी कंबाइंड फील्ड है दूसरे के सामने रखे जाएंगे, तो उसमें ये होता है कि बीच में यूनिफॉर्म होती है, फिर यहाँ पे जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं ये स्पेसिंग बढ़ती जाती है, तो वो आपकी वीक होती जाती है। एनीवेज, ठीक है ना। तो यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज कि जब आपका गैप जितना कम होता जाएगा उतनी आपकी फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, और जितना गैप कम होगा उतनी फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग फील्ड होगी। जितना गैप ज़्यादा होगा उतनी कम फील्ड लाइंस होंगी, उतनी वीक फील्ड होगी। आगे बात समझ? आगे बात समझ? आई। जैसे कि मैं यहाँ पे क्विकली आपको ना, अब मैं एक काम करता हूँ, पेस्ट पेस्ट। अब एक काम करते हैं हम कि कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर एक क्लास एंड करता हूँ, अजान भी हो गई है। सो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। और अब हम दोनों एक दूसरे को, इन दोनों को एक दूसरे के करीब रख रहे हैं, और फिर इन दोनों की जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर हम ड्रॉ करेंगे। और कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ यू गोना ड्रॉ इट, जब आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हों प्लेस इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो ऑफ कोर्स आपका जो है फील्ड लाइंस दे आर गोइंग टू बी बिटवीन देम। यहाँ पे आपकी फील्ड लाइंस होगी, ठीक हो गई बात, बीच में होंगी। इस तरीके से आपकी ऐसे भी होंगी फील्ड लाइंस, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, और ऐसे भी होंगी। ठीक है, समझ आई बात नहीं आई? जी। तो अच्छा, आपकी जो है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, सो फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज डायरेक्टेड आउट, और फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट टू। तो इन दोनों की जो कंबाइंड आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी that is going to be directed away from the positive charge towards the negative charge, away from positive charge towards negative charge, away from positive charge towards negative charge। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब यहाँ पर भी कुछ आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना।
वो आप ऐसे ड्रॉ कर, मतलब ठीक है हानी, अगेन जी डायरेक्टेड directed towards negative charge, or either directed away from positive charge. ठीक हो गई बात? ये आपकी combined electric field आ गई when you have of two charged particles placed in front of each other which are oppositely charged. ठीक हो गई बात? हम्म अच्छा, इसमें आपने एक कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, वो ये कि यहाँ जब आप मूव कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, अगर आप मूव कर रहे हैं ना, तो ये जो स्पेसिंग है आपकी ये बढ़ती जाएगी, स्पेसिंग आपकी देखो बढ़ती जा रही है. दैट शोज कि एज यू मूव एट राइट एंगल्स टू द पार्टिकल्स, यानी इन द वर्टिकल डायरेक्शन अगर आप जैसे मूव कर रहे हैं, सो आपकी जो स्पेसिंग है फील्ड लाइन्स के दौरान बढ़ती जा रही है, द फील्ड इज गेटिंग वीकर. और यहाँ जो बीच में आपकी जो फील्ड लाइंस हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं और क्लोज टू ईच अदर है. दिस शोर्स के बीच में आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज यूनिफॉर्म एंड ऑल्सो इट्स स्ट्रॉन्ग. ठीक है ना, कंपेयर टू ओवर हेयर, यहाँ आपकी फील्ड लाइंस इनके दरमियान गैप ज़्यादा है, तो इट शोज कि आपकी फील्ड यहाँ ज़रा वीक है और यूनिफॉर्म भी नहीं है क्योंकि स्पेसिंग भी इक्वल नहीं. बीच में आपकी जो है इक्वली स्पेस फील्ड लाइंस है, दैट शोज कि आपकी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और स्पेसिंग कम होने की वजह से दैट मींस कि आपकी फील्ड भी स्ट्रॉन्ग है. इज दैट क्लियर और नॉट? या ओके, वी गोना स्टॉप ओवर हियर एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी गोइंग टू रिज्यूम फ्रॉम, मतलब हम यहीं से रिज्यूम करेंगे where you are going to have two same charged particles placed in front of each other, तो उनकी जो combined electric field है वो. And then we're going to talk about different types of materials. In fact, we're going to first discuss about two types of electricity, static and current, what happens in a static and so on. We're going to talk about different types of materials as well. Is that clear? या ओके All right. Just a second. Let me. This call is now being recorded. All right. Okay, next. What we are going to discuss is, अगर let's suppose आपके पास दो वो हों particles और they have the same charge, तो थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है ना, चार्ज इन पे सेम हो एंड विथ सम सेपरेशन, जो दरमियान कुछ सेपरेशन है, चार्ज सेम है दोनों पे. सो नाउ देयर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, और उसकी वजह से क्या होगा कि the electric field, the combined electric field due to both of these charged particles is going to look like in this way. मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक होगी बात? All right. Okay, so this is how the electric field is going to look like. All right, this is how the electric field is going to
look like? If you're going to have two charged particles that have the same charge, I'm not talking about the magnitude of the charge, I'm talking about the sign of the charge. The sign is the same on both the charged particles. If the sign of charge is the same on both the particles, be it both are positive or both are negative, so the electric field line pattern is going to look like this, uh, as there would be electrostatic force of repulsion between them. And let me mark the direction of the electric field. So if you're going to bring in a positive test charge, so it's going to get repelled. So the force on a positive test charge is going to be away from the particle. It's going to be directed away from the particle. All right, like this. And here at this point, this is a space where no electric field will exist. That means कि अगर यहाँ पे आप अपना टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे ना, so it's going to experience no force, neither the electrostatic force of repulsion or attraction. No, there won't be any force that will exist at this point, because there won't be any electric because there's no electric field at in this region. All right, so basically this is the null point. All right, that's what we call as a null point. Let me write it down for you. It's called as null point. And what do you mean by that? No elect. And if you would have both the charge, both, if you would have in place of these charged particles, if instead in place of these charged particles you have both the negatively charged particles, then the pattern would be same. The pattern same ही रहेगा electric field का. The only difference will be कि आपकी जो direction है of the electric field, that would be directed inwards. ठीक है ना? अगर आपके दोनों दोनों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो पैटर्न है दैट विल बी सिमिलर, बट ओनली जो डायरेक्शन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आपकी ऑपोजिट होगी. बस ये एक डिफरेंस है. ठीक है ना? अच्छा, देन व्हाट एल्स? अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं और एक आपकी जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है, एक आपकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. यानी ये पूरी प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज है, यानी इस पे आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक्सेस में, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक्सेस में. दैट्स व्हाट यू मीन बाय दैट. तो अब इस पेयर ऑफ प्लेट्स के दरमियान जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो यूनिफॉर्म होगी. एंड जो उसका पैटर्न होगा दैट्स गोना लुक लाइक दिस. ठीक है ना? सो फेयरली द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस इज द सेम ही होंगी. मैंने कोशिश की है कि सेम ही लगे, सेम ही दिखें. ठीक है ना? ये कोई मेजर करके तो मैंने नहीं ड्रॉ करी, लेकिन ये कि द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन लुक्स फेयरली द सेम. And this is what the pattern of the electric field between two charged plates placed parallel to each other looks like. ठीक है ना? अच्छा, at the edges यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है. इट्स नॉट यूनिफॉर्म एनी मोर एट द एजेस, क्योंकि अगर आप यहाँ एजेस से अवे मूव करेंगे, now it's going to become weaker and weaker.
तो आपकी एट द एजेस जो आपका पैटर्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज लाइक दिस। ठीक है ना, इस तरीके का कुछ पैटर्न होता है। और आपको पता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो जो आपका एरो होगा दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है ना, ये मैंने आपको ज़रा कुछ पैटर्न्स शो कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है ना,